हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। ये एक किसान की कहानी है जो ओलावृष्टि के कारण फसल खराब होने पर भगवान को पत्र लिखता है। इस कहानी को जी.एल. फ्यूएंस ने लिखा है। This story is about a farmer named Lencho who is hoping for good rains. He tells his wife that now we are really going to get some water. As Lencho had predicted, large drops of rain began to fall. यह कहानी लेंचो नाम के एक किसान की है जो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। Lencho is very happy and says, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." Lencho बहुत खुश होता है और कहता है, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े हैं और छोटी बूंदें 5 हैं। Lencho was looking with satisfaction towards the ripe cornfield when suddenly a strong wind started blowing. And along with the rain, big hailstones also started falling. In fact, these hailstones looked like new silver coins. वह पके मक्के के खेत की ओर संतुष्ट नजर से देख रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दरअसल, ये ओले नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। He hoped it would pass quickly, but it did not pass quickly. Hail kept raining for an hour. Garden, hilly area, cornfield, the valley plain was all white, as if covered with salt. उसे उम्मीद थी कि यह जल्दी से खत्म या बंद हो जाएगा, लेकिन यह जल्दी से खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। बगीचा, पहाड़ी क्षेत्र, मक्के का खेत, घाटी का सारा मैदान सफेद था, मानो नमक से ढका हुआ हो। Predicted means भविष्यवाणी की। Raindrop बारिश की बूंद। Strong wind started blowing, तेज हवा चलने लगी। When the storm had passed, Lencho's soul was filled with sorrow, because not a single leaf left on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. The hail has left nothing. जब तूफान गुजर गया, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, क्योंकि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया। फूल पौधे से गायब हो गए थे। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। Lencho now had only one hope, that God would help him. He says, "Don't be so upset, remember, no one dies of hunger." Lencho को अब केवल एक ही उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। वह कहता है, इतने परेशान मत हो, याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता। Lencho worked in the fields like an ox, but he still knew how to write. Next Sunday, early in the morning, he started writing the letter to God. Lencho एक बैल की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह होते ही उसने भगवान को पत्र लिखना शुरू कर दिया। He wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm." उसने लिखा, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस साल मेरे परिवार और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मुझे 100 पेसों की जरूरत है खेतों में फिर से फसल बोने के लिए और जब तक फसल तैयार न हो जाए। ओलावृष्टि के कारण। He went to town. At the post office, he put a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वह शहर गया। डाकघर में उसने पत्र पर मुहर लगाई और उसे मेलबॉक्स में डाल दिया।
The postman laughed and went to postmaster and showed him the letter to God. He had never seen such an address in his career as a postman. डाकिया हंसा और पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। उसने डाकिया के रूप में अपने करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा था। The postmaster also started laughing, but almost he immediately became serious. An idea came to the postmaster's mind that he would answer the letter. पोस्टमास्टर भी हंसने लगा, लेकिन लगभग वह तुरंत गंभीर हो गया। पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि वह पत्र का उत्तर देगा। But when he opened it became clear that the letter could not be just answered with ink and paper, he wanted more than goodwill. लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि पत्र का उत्तर केवल स्याही और कागज से नहीं दिया जा सकता। उसे सद्भावना, दयाभाव से अधिक कुछ चाहिए था। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees, he gave a part of his salary and asked too many friends to give something for charity. लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। उससे कई मित्रों ने दान के लिए कुछ देने को कहा। It was very difficult to collect 100 pesos, yet he managed to collect more than half of the money. He put the money in an envelope and addressed to Lencho, and letter has only one word as signature: God. 100 पेसोस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, फिर भी वह आधे से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने में कामयाब रहा। उसने पैसे एक लिफाफे में रख दिए, लेंचो का नाम लिखा और उस पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा: भगवान। The next Sunday Lencho came a little early to ask if there was any letter for him. The postman himself gave him this letter. अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आकर पूछने लगा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। यह पत्र उसे डाकिये ने स्वयं ही दिया था, while the postmaster, who has performed well, watched from his office. जबकि पोस्टमास्टर, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, अपने कार्यालय से देखते रहे। Lencho was not at all surprised by this. Perhaps he believed that God would definitely help him. But when he counted the money he got angry. God could make no mistake, nor could he reject Lencho's request. इस पर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, शायद उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। भगवान कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं। Immediately, Lencho went to the window. On the public writing table, he started to write. When he was done, he went to the window by a stamp, which he stuck on the envelope. तुरंत, लेंचो खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लेखन मेज पर उन्होंने लिखना शुरू किया। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जो धन मांगा था, उसमें से केवल 70 पेसो ही मुझ तक पहुंचे। मुझे बाकी भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इसे मुझे मेल के माध्यम से न भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है। लेंचो। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, What did Lencho hope for? लेंचो की क्या आशा थी? Lencho hoped for the rains because his ripe corn field needed rain.
लेंचो को बारिश की उम्मीद थी कि उसके पके मक्के के खेत को बारिश की जरूरत थी। राइप कॉर्न फील्ड मतलब है पका हुआ मक्के का खेत। सेकंड क्वेश्चन, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थीं? Lencho's crops were ready to be harvested as the raindrops helped him get a better harvest resulting in greater prosperity. Lencho compared them to new coins. लेंचो की फसलें कटाई के लिए तैयार थीं क्योंकि बारिश की बूंदों ने उसे बेहतर फसल प्राप्त करने में मदद की जिसके परिणामस्वरूप अधिक समृद्धि हुई। लेंचो ने उनकी तुलना नए सिक्कों से की। हार्वेस्ट का मतलब फसल। ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी अधिक समृद्धि। कंपेयर्ड तुलना। Question third. How did the rain changes? What happened to Lencho's fields? बारिश में कैसे बदलाव आया? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? Suddenly a strong wind started blowing and along with the rain, big hailstones started falling for a long time. Thus the rain changed. Hail destroyed Lencho's cornfield. The flowers were gone from the plants. अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ काफी देर तक बड़े बड़े ओले गिरने लगे। इस प्रकार बारिश का रुख बदल गया। ओलावृष्टि ने लेंचो के मक्के के खेत को नष्ट कर दिया। पौधों से फूल उड़ गए। हेलस्टोन्स का मतलब ओले। डिस्ट्रॉयड नष्ट किया। क्वेश्चन फोर्थ, What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की भावनाएं क्या थीं? When the hail stopped, Lencho's soul was filled with sorrow. Because not a single leaf left on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. The hail has left nothing. जब ओले गिरने बंद हो गए, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, क्योंकि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्का पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधों से फूल उड़ गए। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। सोरो का अर्थ है दुख। सोल आत्मा। फिफ्थ क्वेश्चन, Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस पर या क्या विश्वास था? उसने क्या किया? Lencho had strong faith in God. He believed that God sees everything. Even what is in the depths of one's conscience helps everyone in their problem. He wrote a letter to God asking for 100 pesos to resow his fields. लेंचो को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि ईश्वर सब कुछ देखता है। यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में जो कुछ भी है वह हर किसी को उनकी समस्या में मदद करता है। उसने भगवान को एक पत्र लिखकर अपने खेतों में दोबारा बुआई करने के लिए 100 पैसों की मांग की। बिलीव्ड का मतलब है विश्वास। कॉन्शियंस अंतरात्मा की आवाज। रीसो दोबारा बोना। क्वेश्चन सिक्स्थ, हु रीड द लेटर? पत्र किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर रीड द लेटर। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा। क्वेश्चन 7, What did the postmaster do then? फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? The postmaster collected some money from his employees and he also gave a part of his salary and also asked many friends to give something for charity. Sent this money to Lencho. The postmaster tried to help Lencho. पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से कुछ धन इकट्ठा किया और अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया और कई दोस्तों से भी दान के लिए कुछ देने के लिए कहा। यह पैसा लेंचो को भेज दिया। पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने की कोशिश की। कलेक्टेड एकत्रित। एम्प्लॉयज कर्मचारी। चैरिटी दान। क्वेश्चन 8, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके लिए पैसे वाला एक पत्र था? No, Lencho was not at all surprised to find a letter for him with money in it. Perhaps he believed that God would definitely help him. नहीं, लेंचो को अपने लिए पैसे वाला एक पत्र पाकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। शायद उसे विश्वास था कि भगवान निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, What made him angry?
किस बात पर उसे गुस्सा आया? When he counted the money he got angry. God could make no mistake, nor could he refuse Lencho's request. He believed that post office employees had stolen the remaining amount. जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, न ही वह लेंचो के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता था। उनका मानना था कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी रकम चुरा ली है। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस आंसर्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।